Please, हमारा next chapter is nuclear atom. Well, atom itself क्या होता है जी? It's the smallest particle of matter which can exist and take part in a chemical reaction. Listen बेटा, आप you can see this diagram. इसमें अगर देखें तो आपके पास center में you got a nucleus, the smaller part जिसके अंदर आपके पास protons और neutrons are being shown. That's protons and neutrons. इसके surrounding में you will find orbits. अब orbits are being shown जिसमें अगर देखें तो they're going to be electron जो revolve कर रहे हैं in path पे. That is what present structure of this atom is. इसको आपने ये कहा कि it's the smallest particle of matter. Why is it smallest particle? Smallest particle with reference to that it can exist and take part in a chemical reaction independently. With proton, electron, neutron independently exist नहीं करते. Whenever we find they'll be captured by some atom and there'll be no more individual existence. Then chemical reactions. Chemical reaction में अगर हम देखते हैं इनको, in the chemical reaction an oxygen will participate, will take part as oxygen atoms, hydrogen as hydrogen, neutron as neutron, helium as helium. तो हमारे पास atom, smallest particle of matter with reference to its existence, number one. Number two, with respect to its chemical reactions. Then you talk about the structure. I hope you can see on the screen. There is nucleus. Nucleus पे अगर आप देखिए तो आपके पास you got proton and neutrons. Electrons are revolving around it. फिर इसमें देखते हैं हम न्यूक्लियस क्या होता है. How to state nucleus? Well, it is the central, massive, charged part of the atom. Well, nucleus, if you just see, it is at the center of your atom, number one. Number two, आपके पास mass of proton is very large as compared to mass of electron. Well, mass of electron is 1/1836 of the mass of proton. That means कि अगर आपके पास 1836 इलेक्ट्रॉन हो, इन सब का mass will be equal to the mass of one proton. Right? So you call it as massive. Then number three, it's positively charged. क्यों positively charged है? इसमें है proton और neutron. On proton, on neutron, there is no charge. That means inside the nucleus, you just got positive charge. So we call nucleus as positively charged. So that is what this nucleus is. Atom का second part जो है, that is orbit. Well, वो path जिसके ऊपर electrons are revolving around the nucleus, उन path को आपने नाम दिया है orbit. Please, nucleus, उसकी surrounding में path on which electrons are revolving. That path is named as orbit. ठीक हो गया? Well, proton number. किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं
उसको हम नाम देंगे प्रोटॉन नंबर। सिंबल इसका जी, आपके सामने एटॉमिक नंबर सिंबल जी आपके पास। प्लीज इफ यू फाइंड प्रॉब्लम यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। आपने सबने, मैं भी ये अपने आप में शामिल, हमें लर्न करना है कि हाउ टू हैव वर्चुअल क्लास। उसमें जहाँ कहीं पे भी आपने रोकना हो प्लीज रोकें, रोक के पूछें, देन वी कैन प्रोसीड। सो प्रोटॉन नंबर, there's a number of protons present in the nucleus. Well, inside the nucleus you may find it's written proton. अब इस स्ट्रक्चर में देखें तो you got 3 protons. Am I right? जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं न्यूक्लियन नंबर, दैट्स मास नंबर। किसी भी न्यूक्लियस में either there are protons or there are neutrons. इन दोनों के नंबर का सम लें तो दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियन नंबर, या कि फिर आप उसको न्यूक्लियन नंबर को साथ साथ उसका मास नंबर भी कहते हैं। सो ए, कैपिटल ए इसका सिंबल आएगा। इस वक्त जो आपके सामने स्ट्रक्चर है उस पे देखें तो यू गॉट 6 न्यूक्लियॉन्स, 3 प्रोटॉन्स एंड 3 न्यूट्रॉन्स, करेक्ट? इसके बाद अगर आप देखें तो न्यूक्लियोइड, प्लीज न्यूक्लियोइड अगर हम जितने भी पीरियोडिक टेबल देखें उसमें ऑल द एलिमेंट्स दे आर शोन बाय ए न्यूक्लियोइड। जस्ट लुक एट हाइड्रोजन 1H1, इसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियोइड ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली कोई भी न्यूक्लियोइड दैट गिव्स स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। How many protons, how many neutrons in the nucleus? It will not give any information about the electron. अब आपके सामने हम जनरलाइज इसका सिंबल जो है वो आपने X लिया, X के साथ Z for mass atomic number, A for mass number, ठीक जी। तो आपके पास न्यूक्लियाई, हमारे पास बेटा जितने भी आपके पास हमारे जितने भी आपके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स दिए होते हैं वो सब के सब उनके न्यूक्लियस। दैट मीन वो सिर्फ हमें बताएंगे न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? देन यू गॉट द टर्म आइसोटोप। अब हुआ ये कि हमारे पास एलिमेंट्स जितने हैं वो सब के सब अरेंज, लेकिन अगर आपके पास प्रोटॉन नंबर सेम रहे लेकिन मास नंबर चेंज हो जाए तो देन व्हाट टू डू? अगर आप एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट आ जाता है, देन व्हाट टू डू विद इट? उसके लिए वी मेक, बाय द वे मेंडली मेड यूज ऑफ दिस टर्म आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है? Well, atom rather nucleus with the same number of protons but different number of neutrons. Atom with same number of protons, different number of neutrons. Look, आपके पास 3 isotopes are being shown. 1H1, 1H2, 1H3. Am I right? I hope आप देख सकते हो। आपके पास चार्ज नंबर, प्रोटॉन नंबर तीनों में सेम है लेकिन मास नंबर तीनों में डिफरेंट है। जब हम पहले की बात करते हैं तो दैट इज प्रोटियम। इसमें प्रोटॉन आपके पास 1 है,
1h2 ड्यूटेरियम, maybe proton 1 है, 1h3 इसमें भी प्रोटॉन नंबर 1। लेकिन जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो देन इन 1h1 1 minus 1 0, 1h2 2 minus 1 1, 1h3 3 minus 1 2। आप देखो इन सब में डिफरेंट क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन सब में सेम। वेल, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, तो वी कॉल दोस न्यूक्लियाई और एटम एज आइसोटोप्स। हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन के शो किए गए हैं, आई होप यू कैन सी इट। कार्बन 612, 613, 614। आपके पास कार्बन में अगर आप देखें तो सब में प्रोटॉन नंबर सेम 666, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर 6, well 7 and then 8। You got different numbers of neutrons, same number of protons। फिर आइसोटोप्स में कुछ हमारे पास नेचुरली अकरिंग होते हैं, जैसे मैंने कार्बन की एग्जांपल दी, हाइड्रोजन की एग्जांपल दी, दे आर नेचुरल आइसोटोप्स, बट वी कैन मेक आर्टिफिशियल आइसोटोप्स एज वेल। आप आजकल जितने हमारे पास कोलाइडर्स हैं, एडिसन स्विट्जरलैंड में, आपके पास एनी अदर, आपके पास जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके पास कोलाइडर्स हैं, स्टैनफोर्ड के पास एक बहुत बड़ा कोलाइडर है, तो वहां पे दे कैन मेक आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट दे वांट। सो प्लीज नेचुरल आइसोटोप, आर्टिफिशियल आइसोटोप, ठीक है जी। सो दैट इज आइसोटोप्स। हमारे पास प्लीज टर्म्स आपके पास आई 3, दैट इज एटम क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस, ऑर्बिट, प्रोटॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है, न्यूक्लियाइड क्या होता है। उसके बाद आपने न्यूक्लियाइड की एग्जांपल्स देखी, आइसोटोप, इसको देखें कि यू गॉट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ कार्बन। इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? Suppose isotopes are same number of proton, different number of neutron, इनकी चेंज क्या होगी, इन सब पे डिफरेंस क्या होगा? इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी आइडेंटिकल, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट, राइट? सिमिलर फिजिकल, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल, ठीक है, इज दैट राइट? आप जरा just a minute, we can go back, आपके questions बेटा। CR stand for cathode, excuse me, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ट्रांसफार्मर वो किधर गया लड़का, जरा मुझे स्क्रीन पे ले जाओ, जो क्वेश्चन स्टूडेंट के आ रहे हैं वो कहाँ है? चैट कहाँ पे? नहीं, इसके ऊपर जाना होगा ना यार, ये वापस ये उसको बंद आपका नोटपैड को बंद करके मुझे उस पर जाना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। कुछ नहीं सर। जी कौन बात कर रहे हैं? जी जैन। जी जैन, वेलकम। जरा आप लोगों से मिले हुए बहुत दिन हो गए। मैं आपका भाई हूँ ना।
लगता है कुछ साथ शरारतें हो रही हैं। ये छोटा भाई एक सेकंड सर ये जरा लेसन का जरा स्टार्ट का बता सकते हैं कि क्या मिस हुआ अब तक? जी सर, मैं हाजिर हूँ क्लास में। आप जी थैंक यू ना। हमारे पास नेक्स्ट है गीगर मेर्सलन एक्सपेरिमेंट। इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास एक तरफ आपके अल्फा सोर्स है। ये जो बॉक्स शो किया गया है दैट इज प्रैक्टिकली अल्फा सोर्स, इसमें से रेडिएशन रिलीज होंगी। इसके सामने आपने गोल्ड फॉइल रखी। इस गोल्ड फॉइल में से इनका होना तो ये चाहिए था कि ये सीधे ही पास करके चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप ये पोजीशन आप स्क्रीन देखते हैं फोटोग्राफिक फिल्म में, जो ग्रीन कलर है दैट इज प्रैक्टिकली फोटोग्राफिक फिल्म। आप उस फोटोग्राफिक फिल्म पे देखें तो मोस्टली तो सीधे चले गए हैं दीज अल्फा पार्टिकल्स। ये जो आगे आपके सामने डॉट नजर आते हैं दे आर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लेकिन उनमें से कुछ जो है दे आर बेंट एट लार्ज एंगल। अब हमारे पास ये था कि इनको तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, ये बेंड क्यों कर गए? यू कैन फाइंड इट। आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, नंबर 1, most of them they pass straight or with little bending. Sorry, no problem. वो नॉइज बहुत जा रही है, ये माइक चेंज करके सही नहीं उनकी आवाज आ जाएगी। माइक से वो बाद में शुरू कर दीजिए, पहले आप खुद बात करूंगा फिर उसके बाद उनकी बात। हाँ जी, प्लीज। अब ये हमारे पास जो आपके सामने जो रेड लाइंस बनी हुई हैं दे आर बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स विच पास स्ट्रेट, लेकिन उनमें से कुछ हम नोट ये करते हैं जी।
डायरेक्टली हेलो, आपको आवाज सुनाई दे रही भाई? जी सर, जी, सुनाई जी। दे रही है। जी सुनाई दे रही है। हेलो 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 जी जी सर, सर। सुनाई हाँ दे जी, रही है। ये आप ये बताओ जी कि सुनाई आपको दे रही है आवाज। जी आप बेहतर हैं? जी अब अब आ रही है सर से। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। ओके देन लेट्स कंटिन्यू। अच्छा मुझे ये बताओ कि उसमें से आपके पास हाफ लाइफ का टॉपिक रह गया हुआ है, इसको साइड पे कर। हेलो, जी जी सर, हाँ हाफ लाइफ जी, रह जी गए। सर, आवाज आ हाँ रही जी। है। नहीं यार, उससे जो है आवाज, मुझे ये बताओ कि वो जो हमारा था उसमें वापडा टाउन का टॉपिक, जो जो टाउन वाले हैं उनको तो मैंने रेडियो एक्टिविटी, ये जो एक बोल रहा है ना शहजादा, ये उस दिन छुट्टी पे था, सैटरडे को आया नहीं था। हीरो, लंबे बालों जरे आप वाले किसकी शहजादे, बात कर रहे हैं? यार जरे ये आप किसकी बच्चा, बात कर रहे हैं? किसी और की आवाज आ रही थी यार, ये जेटी वाला शहजादा। आके तेरी बात नहीं हो रही। हाँ अच्छा जी, फिर ठीक है सर। हाँ तो नहीं तो तेरी बातें तो होनी है, वो तो खैर मुझे पता है। चलो खैर, अच्छा कैन यू लुक एट दिस प्लीज, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हमारे पास देयर आर 3 ऑब्जर्वेशंस, मोस्ट ऑफ देम पास स्ट्रेट और विद लिटिल बिट। क्यों जी, ये अगर सामने की तरफ देखिए तो आपके पास मोस्ट ऑफ देम स्ट्रेट और विद लिटिल बिट, some of them deflected through large angle. Look, ये आपके पास आए, नो सॉरी, ये आपके पास जो दो लेफ्ट राइट पे, और few were reflected back at an angle greater than 90 degree. प्लीज ये वाला जो है इसको देखें तो ये greater than 90 degree है। इस तरह से you got these 3 observations. In 3 के बेस पे you can give the conclusion. But the conclusion is कि सीधे क्यों पास कर गए ये अल्फा पार्टिकल्स, और उसके लिए आपने उसका आंसर दिया कि मेजर पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। नंबर 2, फिर आपने कहा कि सम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल। उसकी वजह ये थी कि देयर वाज सम पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल करीब आए तो इन प्लेस ऑफ कमिंग क्लोजर दे बेंट अवे, अगर और ज्यादा करीब आए तो वो ज्यादा उसमें वापस चले गए। That means the central part of atom is positively charged. Few are reflected back at an angle greater than 90. Greater than 90. That means it has returned back. जैसे ये वाला है। अब that was the most difficult part to reply. कि ज्यादातर क्यों वापस नहीं आए, सिर्फ few क्यों आए। उसके लिए फिर conclusion was given that your nucleus has a very small size. इसलिए चूंकि इसका साइज बहुत का छोटा है, इसलिए head and coullions are very small. The result is that we are having very few of the alpha particles bounce back. So that was alpha scattering experiment, जिसकी बेस पे we concluded that the structure of an atom. Correct? ठीक। प्लीज प्लीज जो आज हमने पढ़ा, any question about it? जी प्लीज। जी सर। जी, एनी क्वेश्चन? अनम्यूट करो। अनम्यूट ऑल। ऑल जी सर, अगर उनका कोई क्वेश्चन हो तो लेकिन वो आस्क क्वेश्चन। अनम्यूट, ये तो म्यूट हो गए सारे। अनम्यूट ऑल सर, इसको क्लिक करें। अच्छा इसको सुनो नहीं, ठीक है कुछ। हाँ जी, प्लीज डू यू हैव एनी क्वेश्चन? क्वेश्चनिंग वो आपसे चैट में करेंगे, आप आंसर करेंगे। नहीं, चैट कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट क्लास।
ऊपर मैसेज लिखा होता है नीचे करेंगे उसको। जी उमर शहजाद, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? ये चैट्स आ रहे हैं, बोलेंगे आप यहाँ पढ़ के आप आंसर करेंगे। जी बोलेंगे आप क्वेश्चन Ajay, Bida, can you write any question on the message box? Please. जी किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना हो? Can see any question, dear? ओके जी, आज का लेक्चर है। See you tomorrow at 4:30. Ji, Hussain, anything to ask with him? Then, No sir. no question? Okay. No. Aaj beta, it was just the first day. कुछ technical reason, कोई internet problems. तो कल इंशाल्लाह things will be resolved a little better. So in couple of more lectures, we shall be settled. ठीक है? सर 1 अप्रैल से एकेडमी रेगुलरली ऑपरेट करेगी सही? बेटा नहीं, रेगुलर नहीं बेटा, उसे आई डोंट फाइंड सो, क्योंकि कल अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी हो तो शायद ये सिलसिला 1 जून तक चलेगा। क्योंकि सर ये अभी जो आपने क्लास होल्ड की है, आवाज आपकी बहुत क्या कहते हैं टूट के आ रही थी, सही से आ भी नहीं रही थी। तो आपको अगर एक सजेशन दूं तो आप स्काइप के ऊपर रख लें, मैं उस पे आ सकती है आवाज सही से। ठीक है, सुनिए आप। अच्छा, स्काइप इंटरनेट इशू था जिसकी वजह से कट गया। आज बेटा ये है कि मेरे पास भी सिग्नल बार बार आ रहे थे, इंटरनेट क्वालिटी पुअर, जिस तरह से बार बार आ रहे थे। जी वो सर वो हमारे तरफ भी आ रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये जो जूम के ऊपर जो इतना वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, तो आप स्काइप पे अगर रख सकें तो बेहतर रहेगा। चलो उसके ऊपर भी वर्कआउट कर लेते हैं। इनके साथ ये मेरे बैठे हुए हैं द टेक्निकल इंजीनियर, ये सारी चीजें नोट कर रहे हैं और नेचुरली कल में ये शायद कम हो जाएंगी। लेकिन कुछ भी हुआ बेटा, एक तो दूसरा आप लोग प्लीज मेंटली तैयार रहें। वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज वर्चुअल स्कूल। प्रैक्टिकली जिस तरह चाइना में इट स्टार्टेड इन जनवरी और आज तक जो है वो स्कूल बंद पड़े हुए हैं। जी सर, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप सब लोग इस चीज से वाकिफ हैं। अब बीइंग अ टीचर, बट आई फील के आई हैव टू एंगेज माय स्टूडेंट्स इन एनी सिचुएशन, ताकि वो अपने आप को मसरूफ रखें किसी न किसी काम में, चाहे वो 2 या 3 क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करें या कोई पेपर करते हैं या कैसी उनके साथ लेक्चर्स करता हूं मैं। वी हैव टू डू समथिंग यूजफुल, ताकि हमारे यंग माइंड जो हैं वो बस फारिग ना रहे, मूवीज ना देखते रहे, और पेरेंट्स जो हैं दे गेट लिटिल सेटिस्फैक्शन कि माय चाइल्ड इज बिजी विद सम स्कूल। तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज वर्चुअल स्कूल। तो इसलिए I don't expect that it's going to open on 4th June. Probably the whole month of May, somewhere in 1st June जो है वो it may open. अब वो summer vacation के नाम पे शायद फिर वो बंद कर दिए जाएं, तो I can't say anything. ठीक है? जी सर। तो mentally we should be ready for the virtual classes. जी सर। ठीक है? और आप लोग भी बेटा पेपर देने हैं, आप लोग जो हैं आप प्लीज बी वेरी क्लियर कि एग्जाम हैज टू बी हेल्ड एट द टाइम जहां पे भी है। अगर हम मिस किया तो हमारे लिए सेपरेट एग्जाम किसी ने नहीं कंडक्ट करना, ठीक है ना? जी सर। अब दूसरा ये है कि अगर आप सपोज करें जैसे आप सोच रहे हैं या गवर्नमेंट सोच रही है कि अगर क्लास ये लेट हो जाती है तो A1 की क्लास का सेशन तो अपने टाइम पे शुरू होना होता है ना, वरना A2 का टाइम कम हो जाएगा। A2 के साथ जो A2 का दे रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटीज ने अपने टाइम पे शुरू होना है। तो ये एक लॉन्ग चेन है जो सिर्फ आप स्टूडेंट्स के साथ नहीं है, अकेले के साथ, इट्स अ लॉन्ग चेन। ठीक है? यस सर। सो प्लीज बी ऑन द पॉइंट और तैयारी करो। आई होप सो द गवर्नमेंट एग्री टू टेक सर्टेन मेजर्स टू टेक दिस एग्जाम इन सम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, दैट्स व्हाट आई कैन से।
जी सर। ठीक है ना जी। मेरा ख्याल है कि मेरी सजेशन तो ये है कि लेट देम हैव इट इन कंट्रोल्ड सिचुएशंस। ठीक है जी सर। तो ओके देन, सी यू टुमारो थैंक यू सर। सेम टाइम। चलो, ओके। थैंक यू जी ब्रदर, सर। अल्लाह हाफिज़।